Hello students, welcome to Adviz Learning, Live to Learn. Today we are starting with the interesting lesson of 10th standard state board in which we are studying something called as financial planning. If I am not wrong, this chapter financial planning we had in our 9th standard syllabus as well. In 9th standard, when we studied this lesson, we were discussing about an individual. One person, his income tax. एक बंदा है जिसकी इनकम आती है, इनकम में से वो एक्सपेंसेस क्या करता है, सेविंग क्या करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसका इनकम टैक्स क्या रहेगा, उस पर हमने डिस्कशन किया था. इन दिस ईयर वी आर अगेन स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल प्लानिंग बट विथ अ डिफरेंट अप्रोच. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फाइनेंशियल प्लानिंग with respect to a business or a businessman, a consumer or the consumed articles products. Now let us think of this in this way, that if I am not wrong, you might have come across the word GST. So in this lesson we will be talking this GST in detail. Now the question is, what is GST? GST is called as the goods and service tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. थोड़ा हम हिस्ट्री की बात करते हैं. दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों या कैसे पिक्चर में आया? बिफोर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया देयर वेर सेवरल टैक्सेस लेविड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर. लाइक इफ यू सी हियर, you can see entertainment tax, excise tax, CST, VAT. Similarly, here you can see luxury tax, entry tax, local tax, octroi, etc., etc., etc. What this GST does is, all these different kinds of taxes which were applied on a particular good earlier, now all of them they are subsumed. Subsumed यानी उसके अंदर ले लिया गया. किसके अंदर? तो they are taken under GST, goods and service tax. The name itself suggests all the goods we purchase or all the services which we use are all applied under a single tax system called as goods and service tax, that is GST. So this goods and service tax is, as I said, for all the goods, for all the services, we are applying a single kind of tax, and therefore we consider it under one nation, one tax system brought by the Indian government. Now this one kind of system or one nation, one tax system means exactly what, और वो किस तरह से हम यूज करने वाले हैं और हमारे सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करना शुरू करेंगे. नाउ व्हेन आई से GST, तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए that GST is brought into effect in India from 1st July of 2017. इसके पहले there were so many taxes and all of them they are brought under one system of tax that is called as GST. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर यू बाय अ पेप्सी बॉटल. पेप्सी अच्छा है, वेरी गुड. But when you buy this Pepsi bottle in Maharashtra and you buy the Pepsi bottle, the same Pepsi bottle in Karnataka or say in some other state, what happens is every state earlier were having different tax systems जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, due to which the same Pepsi bottle cost which was there in Maharashtra and the same Pepsi bottle cost which was there in Karnataka, they were different. वही बॉटल आप महाराष्ट्र में अगर 33 रुपीज को लोगे तो वही बॉटल आपको कर्नाटका में 35 रुपीज में मिलती थी. कुछ चीजों के दाम वहां पे ज्यादा और यहां पे कम ये देखने को मिलता था. कुछ चीजों के दाम यहां पे ज्यादा और वहां पे कम ये देखने को मिलता था. एग्जाम्पल पेट्रोल. सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टैक्स सिस्टम लेविड बाय ऑल द स्टेट्स इन देयर रीजन. नाउ ऑल दोज टैक्स रेट्स वेर डिफरेंट, and therefore the amount which was coming as tax which you should pay to government were different, and therefore the value, the cost of a particular product in different state was different. और ये नहीं होना चाहिए, ये कॉमन होना चाहिए. ये सोचकर इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉमन सिस्टम ऑफ GST
into picture लाया and that is called as GST. So it came into act from 1st of July 2017. Now when I say GST, इसके अंदर कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. तो कैसे मालूम होंगी या क्या क्या हो सकती है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव ब्रॉट अ बिल इन फ्रंट ऑफ यू. ऑफ कोर्स व्हेन यू परचेज सम गुड्स प्रोडक्ट्स तो आपको उसका बिल मिलता है. नाउ व्हेन यू आस्क फॉर बिल एंड व्हेन द शॉपकीपर गिव्स यू अ बिल, तो उस बिल में इफ इट इज अ प्रॉपर बिल देन इट विल कंटेन सो मेनी थिंग्स जो यहां पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. सम पर्सन बायर डिटेल्स इज परचेजिंग सम गुड्स. ये सारे गुड्स के नाम है, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, क्या रेट था, क्या अमाउंट था, वो सब ठीक है. व्हाट वी शुड टेक केयर इन दिस बिल इज वन थिंग इज, यहां पे आप देख सकते हो देयर इज अ जीएसटी नंबर. वी शुड नो व्हाट इज जीएसटी नंबर, वो हमें यहां पे पढ़ना चाहिए. व्हाट यू कैन सी जीएसटी के अलग अलग पार्ट्स यहां पे आपको दिख रहे हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CGST, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SGST, ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IGST. हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर दीज थिंग्स. एंड व्हाट यू फाइंड इज आपका टोटल अमाउंट जो है उसका डिस्काउंट होने के बाद उसका ग्रॉस अमाउंट जो बनता है, ऑन दैट यू आर अप्लाइंग द टैक्स रेट्स. यानी ये जो GST, SGST या जो भी लगता है यहां पर, दैट इज अप्लाइड ऑन द फाइनल अमाउंट आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट्स एंड ऑल. यानी डिस्काउंट के पहले जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है उस पर आप टैक्स नहीं लगाते हो. ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए एंड इन सब को मिलाकर हमारा ग्रॉस वैल्यू बनता है. सो व्हेन यू स्टडी GST you need to understand a few terms, a few numbers, a few values, a few codes. हम वन बाय वन उन कोड्स पे आते हैं. तो जैसे कि हमने देखा GST के टाइप्स है, तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं. When I say GST, GST is basically divided in three parts: SGST, CGST and IGST. When I am a student of 10th standard state board, I repeat, when I am a student of 10th standard state board, I need not to worry what is this IGST. In our textbook we have that introduction of IGST in one line, but हम उसको यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पे भी सिर्फ देख लेंगे, यूज में हमें वो नहीं करना है. तो हमारा मेन पर्पस, हमारा मेन यूज क्या होने वाला है, तो दैट इज SGST एंड CGST. नाउ व्हाट इज SGST, व्हाट इज CGST, ये क्लियर करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर that all the taxes are taken in GST and that GST is divided in two parts. One part is इंट्रास्टेट मूवमेंट के लिए एंड द अदर पार्ट इज इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए. नाउ व्हाट इज इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, तो वो क्लियर कर लेते हैं. सपोज आई एम अ होलसेलर एंड आई सेल सम गुड्स टू अ रिटेलर. मैं एक होलसेलर हूं और एक मैं रिटेलर को बेच रहा हूं. आई एम वर्किंग इन महाराष्ट्र, माई होलसेल शॉप इज इन महाराष्ट्र एंड ऑफकोर्स जो रिटेलर मेरे से परचेज करने वाला है वो भी महाराष्ट्र में ही है. तो आई एम डूइंग दिस ट्रांजेक्शन फ्रॉम इन महाराष्ट्र एंड फ्रॉम महाराष्ट्र. यानी होलसेलर भी महाराष्ट्र का है और रिटेलर भी महाराष्ट्र का है, तो उस केस में दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रास्टेट मूवमेंट. बट मान लो अगर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है एंड वॉट एवर आई मैन्युफैक्चर, आई सप्लाई दैट गुड इन डिफरेंट स्टेट्स. माई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इन महाराष्ट्र एंड आई एम सप्लाइंग दैट प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र, इन कर्नाटका, इन गोवा, इन वेस्ट बंगाल, इन उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स पे मैं उसको बेचता हूं. तो व्हेन आई एम डूइंग दिस ट्रांजैक्शन, आई एम डूइंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टेट मूवमेंट. इन आवर सिलेबस वी आर नॉट सपोज टू बॉदर अबाउट द इंटरस्टेट मूवमेंट वंस अगेन, बिकॉज हमारे सिलेबस में इस IGST का, इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड GST. It is called as integrated GST, integrated goods and service tax. And in our syllabus, in our questions, in our problems which we are going to deal with, we are not having any kind of question जिसमें IGST हमें फाइंड करना पड़ता है. फिर भी अगर मान लो किसी ने आपको पूछ लिया, देखो ये माइंड में रख लेना कि what is the IGST to be given or to be paid, तो आपका आंसर डेफिनेटली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड विल बी ऑलवेज ₹0, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम स्टेट टू स्टेट के मूवमेंट में देखेंगे. वी विल बी डूइंग ओनली इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स. तो वी विल बी कैलकुलेटिंग CGST, वी विल बी कैलकुलेटिंग SGST
और अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज IGST, तो योर आंसर इज ऑलवेज ₹0, वो तो फिक्स कर लिया। बट इस पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट, व्हेन यू आर डूइंग इंट्रा स्टेट मूवमेंट, मींस महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो आपको जो आपका टैक्स है, जो GST है, will be dividing into two parts. The half part of it, I repeat, half part of it will be paid to the central government, which we call as central GST, Central Goods and Service Tax. सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आप महाराष्ट्र में परचेज और सेल कर रहे हो, बट उसका जो टैक्स का हिस्सा है वो आधा हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली तक जाएगा। एंड द हाफ पार्ट, द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ दैट GST will go to the state government, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, which is called as SGST. तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में पहले क्लियर कर लो कि every time when you pay GST, that GST is divided into two parts. One part goes to the central government and one part goes to the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CGST, एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SGST. आई होप दिस इज क्लियर, टिल नाउ इट इज क्लियर। थोड़ा और आगे आते हैं। व्हेन आई से दिस ऑल थिंग्स, तो GST मैं कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसने GST दिया है या किसने वो टैक्स पे किया है? तो फॉर दैट गवर्नमेंट गिव्स GST नंबर और GST कोड टू ऑल दी होलसेलर्स, ऑल दी सेलर्स, नॉट फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को GST की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर GST पे कर रहा है, उसको किसी बेनिफिट की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से, तो वो नहीं मांगेगा उसे। तो जो भी डीलर है, जो भी होलसेलर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उन सब के पास एक GST नंबर होगा जिसको हम कहते हैं GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN, आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ ये आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी खूबियां हैं, आपको उन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। दैट व्हेन आई से GSTIN, किसी भी स्टेट का, किसी भी होलसेलर डीलर का अगर GSTIN नंबर है, तो वो कुछ इस तरह से 15 अल्फा न्यूमेरिक कोड में बटा हुआ है। इट इज मेड ऑफ 15 अल्फा न्यूमेरिक कोड। रिमेंबर दिस बिकॉज इट कम्स इन MCQ। MCQ में आपको पूछा जाएगा GSTIN इज ए डैश अल्फा न्यूमेरिक कोड। आंसर इज 15। ऑप्शंस में आपको नंबर दिए होंगे 14, 15, 16, 17 और सम अदर नंबर्स, आपको ध्यान में रख के उसको 15 करना है। कंफ्यूजन वहां पे ये हो सकता है कि अगर वो पैन नंबर की बात करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैड पैन लास्ट ईयर, परमानेंट अकाउंट नंबर। हम जब इनकम टैक्स की बात करते हैं ना इंडिविजुअल की, तो पैन नंबर वहां पे आता है। तो दैट इज 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, दिस इज 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो वो जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे रखना नहीं है। हमारे 10th स्टैंडर्ड में GSTIN हम पढ़ते हैं जिसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है 15 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स। नाउ इन दैट 15 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट देयर इज अ सीक्वेंस डिसाइडेड फॉर इट कि वो किस तरह से बनता है। लाइक इन दिस 15 डिजिट्स, द फर्स्ट टू डिजिट्स आर ऑलवेज द स्टेट कोड। द फर्स्ट टू डिजिट्स आर ऑलवेज द स्टेट कोड। स्टेट कोड मतलब महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र का कोड। वैसे यहां पे आपने देखा तो 22 लिखा हुआ है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। हम अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप कभी GSTIN लिखोगे तो यू विल ऑलवेज राइट इट एज 27। सो महाराष्ट्र का GSTIN कोड क्या है? 27। तो हर किसी बंदे का जो महाराष्ट्र में अपना GSTIN रजिस्टर करता है उसके नंबर के शुरुआत के 2 डिजिट क्या होंगे? 27, इंडिकेटिंग दैट दिस इज द GSTIN belonging to Maharashtra state. After that, from this till this, the 10 digits are the permanent account number of that individual who is registering that GSTIN. Example, if I own a factory और उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स के सेलिंग के लिए अगर मैं मेरा GSTIN रजिस्टर करा रहा हूं, तो मेरे पूरे GSTIN में these 10 digits will be my PAN number या मेरे फैक्ट्री का PAN नंबर। नाउ PAN नंबर कैसे बनता है हमने लास्ट टाइम देखा था, दैट उसमें आते हैं 1 2 3 4 5, पहले 5 अल्फाबेट्स एंड देन 1 2 3 4 दे आर 4 न्यूमेरिक्स
and last में there is one alphabet, that is PAN number. After that you will find there is 1 and then Z and then 5. Now what is 1? So it is given here entity number of the same PAN holder in a state. Entity number means जो पैन नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ है उस पैन नंबर के एक से ज्यादा अगर होल्डर्स है तो वो नंबर यहाँ पे दिखेगा. जनरली फॉर वन पैन नंबर देयर इज ओनली वन होल्डर, बट इन सम केसेस लाइक बिजनेस है, पार्टनर्स है, तो उस पैन नंबर के 2 या 3 पार्टनर्स अगर होंगे तो यहाँ पे वो नंबर्स आ सकता है. Z इज अल्फाबेट, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, उसको चेंज नहीं करना है. एंड लास्ट में 5 है, चेक सम डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट, वो भी आप हमेशा फिक्स रखोगे. मीन्स क्या क्या फिक्स रखने वाले हो, तो यू विल फिक्स दिस 27 फर्स्ट, वो फिक्स रहेगा. यू विल फिक्स दिस 1 ऑल्सो, यू विल फिक्स दिस Z ऑल्सो, यू विल फिक्स दिस 5 ऑल्सो. यानी आपके पास ये 2 और ये 3 जो नंबर्स अल्फाबेट्स है दे आर ऑलवेज फिक्स्ड. बीच की ये जो वैल्यूज है यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है कि यू कैन नॉट राइट इट रैंडमली, यू विल ऑलवेज राइट इट लाइक दिस 5 अल्फाबेट्स, देन वो अल्फाबेट्स कुछ भी रहेंगे तो भी चलेगा, ABCDE, दैट्स ओके. फिर 4 नंबर आप लिखोगे वो भी कुछ भी चलेगा, 1 2 3 4 लिखो, 9 8 7 6 लिखो, व्हाटएवर, एंड देन यू कैन राइट वन मोर अल्फाबेट देयर. ये पार्ट आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बदल सकते हो, बट बाकी के जो मैंने बताई चीजें दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे विल रिमेन द सेम. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो GSTIN नंबर हम लोगों को मालूम होना चाहिए कैसे लिखा जाता है. नाउ एज आई वाज सेइंग, GSTIN में स्टेट कोड आपको मालूम होना चाहिए. तो अगेन फॉर यूर सिलेबस यू आर सपोज टू रिमेंबर द GST कोड ऑफ ओनली द महाराष्ट्र स्टेट. बाकी स्टेट्स को अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, बट दिस इज द लिस्ट, हियर इज द लिस्ट. यू कैन सी 1 stands for जम्मू एंड कश्मीर, 2 stands for हिमाचल प्रदेश, 3 stands for पंजाब. हम अभी 22 की बात करें तो इट इज छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड. वैसे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था, इट इज 27. सो ये आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र के लिए व्हाट इज द स्टेट कोड, 27. अगेन अ वेरी स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन MCQs. व्हाट इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र इन GSTIN? तो आपका आंसर होगा 27. ऑप्शंस में यू विल बी हैविंग 22, 27, 25, 28, व्हाटएवर. आपको क्या लिखना है, 27. चलो, आई होप दिस इज क्लियर. इसके आगे बढ़ते थोड़ा सा. When you talk about GST in further part, आपको GST में as I was saying पैन नंबर मालूम होना चाहिए. तो ये हमने लास्ट ईयर देखा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. 10 डिजिट्स होने चाहिए. 10 में पहले 5 होंगे अल्फाबेट्स, 4 होंगे नंबर्स एंड देन अगेन 1 अल्फाबेट. तो ये हमने लास्ट ईयर किया है, तो हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते. कमिंग टू HSN कोड, जैसे एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी को GST कोड होता है, GSTIN होता है, similar to that for every goods which we purchase or we sell we have HSN codes for the goods. for ये goods के लिए, like here you can see, अगर HSN कोड की बात करेंगे तो जनरली HSN कोड्स आर ऑफ 6 डिजिट्स. कुछ कुछ केसेस में वो 8 डिजिट्स के भी होते हैं. क्या क्या है, तो यू कैन सी फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट द चैप्टर अंडर विच दैट गुड कम्स. मीन्स HSN का एक बुक है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स है, उसमें किस चैप्टर के अंडर वो आता है that comes. Like here in this case 39 indicates the chapter under which it comes. Like services की अगर हम बात करेंगे तो all kinds of services they come under the code 39. तो वो 39 fixed है for all services. Next 2 digits indicates कि उस चैप्टर के अंदर वो फिर कौन से हेडिंग में आता है. सर्विसेज है तो कौन से काइंड ऑफ सर्विसेज में आता है, तो उसके लिए अलग अलग हेडिंग्स दिए गए, उसमें वो नंबर आएगा. एंड देन द 2 digits gives कि उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग कौन सा है, और उसमें भी अगर कोई सब हेडिंग है तो यू विल हैव दीस लास्ट 2 digits. सम केसेस में इट विल बी देयर, सम केसेस में इट विल नॉट बी देयर. सो वी वर टॉकिंग अबाउट HSN, एंड HSN मींस हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. मैंने ऐसे कहा कि फॉर एनी काइंड ऑफ गुड दिस फर्स्ट 2 digits आर फिक्स्ड, जिसमें मैं सर्विसेज की बात कर रहा था. बट अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज अकाउंटिंग कोड के एक और नंबर आ जाएगा यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज SAC कोड. Now when I say SAC code, तो अगेन सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन HSN कोड, ये 6 डिजिट का एक कोड रहेगा जिसमें फर्स्ट 2 आर फिक्स्ड फॉर ऑल सर्विसेज, दैट इज ऑफ 99, एंड देन मिडिल 2 डिजिट्स दे इंडिकेट द काइंड ऑफ सर्विसेज. लाइक यहाँ पे 99 जो है इट इज फॉर ऑल IT सर्विसेज. इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आप कोई सर्विस लेते हो, लाइक कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, तो इट विल ऑलवेज कम एज 99. फिर उसमें हेडिंग के लिए वी हैव दिस 2 मिडल
numbers, and then last में sub heading के लिए we have 2 more digits. So HSN code, SSE code to indicate, to identify which kind of goods and services we are purchasing or selling. We have all these codes given. तो हम लोगों के लिए वरी कहाँ पे है? तो when we will be asked to write a tax invoice, we are asked to write a bill, तो आपको इन सब कोड्स को प्रॉपरली लिखने और अरेंज करने आना चाहिए. वो हम क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे. नाउ कमिंग टू जीएसटी, एज आई सेड, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अप्लाई अ सिंगल टैक्स सिस्टम ऑन ऑल द गुड्स इन द एंटायर स्टेट. तो उन्होंने जीएसटी पिक्चर में लाया. बट व्हेन आई से जीएसटी, तो उस जीएसटी के भी 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिविजन्स है. दे आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज. इफ यू सी हियर, the first one I have written is some goods on which there is no tax applied, there is no tax levied. For example, 0% अगर टैक्स की बात करते हैं तो all kinds of food grains, fresh vegetables, fresh milk, newspapers, hearing aids, all such things जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि they are all basic necessities. उन सब पे कोई भी टैक्स नहीं लगता. They are coming under 0% टैक्स सिस्टम. उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा. यानी यहां से एक चीज क्लियर होता है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज टू द लग्जरियस नेसेसिटीज, ये टैक्स रेट आपका बढ़ते जाता है. फॉर एग्जांपल, टी एंड कॉफी, शुगर, मिल्क, फूड फॉर बेबीज, मेडिसिन, कोल, एलपीजी, हाउस होल्ड यूज के लिए, कमर्शियल के लिए अलग होता है. रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस अगर आप कोई यूज कर रहे हो तो इन सब पर आपको मिलता है टैक्स 5% का. नाउ अगेन, इफ इट इज जीएसटी, then that 5% will be divided into 2 parts. 2.5% will go to central government, which is called as CGST, and 2.5% will go to the state government, which will be called as SGST. यानी ये आगे जाके फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. बट बेसिकली उस पर टैक्स कितना लगेगा? तो इट विल बी ऑफ 5%. देन और थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए, यानी जिसकी जरूरत के वैल्यूज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका टैक्स का रेट भी बढ़ते जाता है. एंड कमिंग टू द लग्जरियस थिंग्स like air conditioners, refrigerators, beauty products and all, यानी ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है तो भी चल जाएगा. तो उन सब चीजों के लिए we have the tax of 28%. And again, it will be divided in 2 parts, 14% for central government, 14% for state government. And this is how GST goes. So GST का रेट जो है आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है. For every question you will be given that rate of GST is so and so. हम सर्विसेज की बात करते हैं तो टिल नाउ ऑल द काइंड्स ऑफ सर्विसेज विच वी फील, विच वी टेक, दे आर कमिंग अंडर द 18% जीएसटी पार्ट. सो सर्विसेज के लिए इट इज ऑलवेज 18%. नाउ हाउ जीएसटी वर्क्स, हाउ जीएसटी वर्क्स. अब यहां पे आप देख सकते हो दैट वी आर कंसिडरिंग द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी, जिसमें आप देखोगे तो एक मैन्युफैक्चरर है, ही मैन्युफैक्चर्स समथिंग एंड ही सेल्स इट टू होलसेलर. होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है एंड देन ही सेल्स इट टू रिटेलर. रिटेलर होलसेलर से खरीदता है एंड देन ही सेल्स इट टू कंज्यूमर. एंड इन सब प्रोसेस में मैन्युफैक्चरर क्लेम बैक जीएसटी ऐसे लिखा होगा. यानी व्हेन ही इज परचेजिंग समथिंग टू प्रोड्यूस द थिंग्स, तो उस वक्त जो भी उसने परचेज किया हुआ है उसके लिए उसने ऑलरेडी जीएसटी पे किया है. किसको? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को. Let us say the rate of GST given here is 6%. तो वो जब ये 6% का GST दे रहा है and then when he is selling it to wholesaler, वो वहां से GST कलेक्ट भी करता है. Like example, मान लेते हैं for example that manufacturer when he is purchasing the raw materials, he is giving the GST of say rupees 100. He is giving the GST of rupees 100. Then he sells it to the wholesaler. Then he sells it to the wholesaler. While selling it to wholesaler, he is collecting GST from the wholesaler. He is collecting GST from the wholesaler. Let us say it is 150. तो ये जो 150 का कलेक्शन हुआ है तो वो 150 का पूरा गवर्नमेंट को पे नहीं करता. वो उस 150 में से 100 रुपीज जो उसने ऑलरेडी पे किया था, he claims that back and that's why written here it is he claims back. एंड देन बचा हुआ जो 50 रुपीज है वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा. वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा. अब यहां पे सोचने वाली बात है दैट होलसेलर ही हैज ऑलरेडी पेड जीएसटी ऑफ 150 रुपीज टू द मैन्युफैक्चरर.
अब वो जाके जो भी उसके पास प्रोडक्ट है वो रिटेलर को बेचेगा. ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द रिटेलर. समझो उसने रिटेलर से कलेक्ट किया 180 रुपीज का जीएसटी, तो वो गवर्नमेंट को 180 रुपीज पे नहीं करता, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पेड 150 रुपीज टू द मैन्युफैक्चरर. वो 150 रुपीज को क्लेम बैक करता है, तो बचा कितना? 30 रुपीज. तो while paying to government he will be paying the GST of rupees 30 only. Obviously जब रिटेलर ने ये किया था and when he will sell it to the consumer will definitely again pay the GST to the retailer. मान लो कंज्यूमर ने रिटेलर को 200 रुपए का जीएसटी दिया, तो वो 200 रुपीज रिटेलर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते. अगेन ही विल क्लेम बैक दी मनी. कितना क्लेम बैक करेगा? तो ही विल क्लेम बैक दैट 180 रुपीज जो ऑलरेडी होलसेलर को पे कर चुका है, एंड देन रिमेनिंग 20 रुपीज जो है दैट अमाउंट ही विल पे टू द गवर्नमेंट. एंड इन दिस एंटायर सिनारियो जो कंज्यूमर है उसने एक बार जीएसटी पे कर दिया, तो वो वापस गवर्नमेंट से क्लेम नहीं करता, बिकॉज ही इज गोइंग टू कंज्यूम द प्रोडक्ट. सिंस ही इज कंज्यूमिंग ही विल पे द टैक्स. सो कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया? 200 रुपीज. सो वो 200 रुपीज पे करने के बाद में वो जो भी अमाउंट है वो उसको फाइनल करके वहीं पे स्टॉप कर देता है. सो इन दिस एंटायर सिनारियो व्हाट वी फाइंड इज गवर्नमेंट को मिलता है 100 रुपीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, देन 50 रुपीज फ्रॉम द होलसेलर, देन 30 रुपीज फ्रॉम द रिटेलर, एंड देन 20 रुपीज फ्रॉम द कंज्यूमर. एंड इन ऑल अगर आप देखोगे तो उसका अमाउंट उसको उतना मिलता है जितना उसको मिलना चाहिए. सो एनीवेज आप देखते हो तो गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स जो पहले कलेक्ट कर रहा था और अभी कर रहा है, उसमें कुछ फर्क नहीं. ओनली द थिंग इज दिस जीएसटी सिस्टम हैज मेड इट बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर बाय मेकिंग इट अ कॉमन टैक्स थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द कंट्री. अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम चुकाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज द ओनली बेनिफिट. मूविंग अहेड, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.1. So in practice set 4.1, when we are starting with practice set 4.1, as I said, we will be discussing the questions of GST जो हमने अब तक देखे हुए, जिसमें से एक सिंपल कंसेप्ट हमने देखा था that GST is divided in two parts, CGST and SGST. ये उसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे. See the question. We'll read the question first. The question says that Pawan Medical supplies medicines. On some medicines the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? Very simple question. We are given the rate of GST. हम उसको डिवाइड करने वाले हैं दो पार्ट्स में और वही हमें यहाँ पे लिखना है. Obviously this is 1 mark question. तो इसको आप लिखोगे कैसे? तो first of all we will start with what is given. We are given the rate of GST. What is the rate of GST given? It is 12%. We know that GST is divided into two parts, SGST and CGST. तो SGST is half of it, CGST is half of it. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है rate of CGST and SGST is same for each product, and therefore rate of CGST, rate of SGST is half of the rate of GST, which is given 12%. तो half of 12% कितना बनेगा? तो it is 6%. A very simple question, a very simple answer for it. एक मार्क के लिए आपको इतना ही लिखना चाहिए. सो आई होप यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द राइटिंग पार्ट. हम तब तक एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज, यू आर स्टार्टिंग राइटिंग एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स अगेन. द क्वेश्चन सेज दैट द पवन मेडिकल, yes, पवन मेडिकल supplies some medicines and for every medicine they are charging the rate of GST of 12%. My question is, what is the rate for SGST and what is the rate for CGST? So we will start the answer with the given thing. The given thing is rate of CGST is 12%. We know that CGST and SGST the rates are always the same, and therefore जो GST है उसको हम equally two parts में divide करेंगे, and therefore it is half of 12% and that value comes to 6%. So the answer for the first question is rate of CGST and rate of SGST both are equal to 6%. So I hope you have completed this. We can now start with the next question. So ये आपके माइंड में फिक्स कर लो that whenever we have a question on GST जिसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड अगर करते हो
तो यू आर गोइंग टू गेट CGST एंड SGST. GST को हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो CGST और SGST मिलता है. Fix this in your mind. Coming to the next question. The next question says that on certain article, if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? Obviously आपने अगर सोचना शुरू कर लिया है तो आपको ये आंसर भी पहले से मिल चुका है. Just like what we did in the previous question, we have SGST, CGST and GST in this question. तो हमने देखा था CGST, SGST are always the same. So हम यहाँ पे फिर से सेम शुरुआत करेंगे. We are given the rate of CGST is 9%. We know that the rate of CGST and SGST are same for each product. So if rate of CGST is given 9%, तो rate of SGST is also equal to 9%. तो ये पहला आंसर हमें मिल गया, that rate of SGST is equal to rate of CGST, which is 9%. And what is rate of GST? तो obviously that will be double of this. तो हम इसको डबल कर लेते हैं. That rate of GST is 2 times the rate of CGST, which is 2 into 9%, and that answer goes to 18%, and that is the second required answer in the question. So we got rate of SGST, it is 9%, and we also got the rate of GST, which is 18%. So अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछता हूं, by the time you can start writing, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CGST we have 9% and what is SGST, तो you always keep this in mind that CGST, SGST, the rates are always the same. तो if my CGST given is 9%, तो SGST का रेट भी 9% होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम अगर GST पूछा जाता है तो प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैड GST एंड फॉर CGST, SGST हमने उसको हाफ में डिवाइड किया था. इन दिस क्वेश्चन वी हैव CGST और अगर GST पूछा जाता है तो आपको ऑब्वियसली उसको डबल करना है. उसको डबल करेंगे तो मुझे मिलेगा रेट ऑफ GST विच इज 2 into 9%, दैट इज 18%. And thus we get the answer for the second question. The rate of SGST is 9% and rate of GST is 18%. थोड़ा और आगे बढ़ते. Third question. The question is Messrs Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. Keep this in mind. Tin, each tin. So the rate given is for each tin. The cost given is for each tin. 2,800 rupees का एक टिन है. यहां पे स्टूडेंट्स गलतियां डेफिनेटली करते हैं. They consider 2,800 as the total taxable amount. No, taxable amount of each tin is given. यानी आपको 2 tins, यहां पे क्वेश्चन में शुरुआत में ही है 2 tins, तो आपको 2 tins का taxable amount पहले निकालना पड़ेगा. If you ignore that each tin, तो आंसर गलत हो जाएगा. We are given the rate of GST is 28%, the highest rate of GST. Find the amount of CGST, SGST charged in the tax invoice. Tax invoice means जो बिल आपका बनेगा उस बिल में दिखने वाले CGST and SGST के अमाउंट्स, वैल्यूज क्या है ये मुझे बताना है. तो let us start with the given thing. Obviously, my given thing here is that for each tin, the taxable value is rupees 2,800. कितने tins है? तो there are 2 tins. तो taxable value हम 2 tins का find कर लेते हैं. So taxable value for both the tins will be 2 times 2,800, which comes to rupees 5,600. 5,600 is the taxable value of both the tins. We have the rate of GST given. The rate of GST is 28%. अब आपके पास टैक्सेबल वैल्यू भी है, आपके पास रेट ऑफ GST भी है, तो आप GST इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज GST? बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज CGST एंड SGST, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप GST फाइंड कर लो, फिर उसको हाफ में डिवाइड कर लो, या फिर
रेट को ही पहले डिवाइड कर लो एंड देन फाइंड द वैल्यूज। तो मैंने यहां पे रेट को डिवाइड किया हुआ है, दैट रेट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज हाफ ऑफ 28%, दैट इज कमिंग टू 14%। अब अगर ये 14% है, तो आप दोनों के वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट इट इज 14% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू? इट इज ₹5,600. जस्ट कैलकुलेट इट. 14%, that is 14 upon 100 of means into 5,600 is equal to, that 0 and gets cancelled. When I multiply 14 with 56, I'll get 784, and therefore the final value CGST and SGST charged in the tax invoice is ₹784, and that is the final answer. So I repeat once again. Meanwhile, आप लिखना शुरू कर सकते हो. So what is given in the question is, we are given the taxable value of each tin. Remember this word, each tin. Each यानी एक टिन की कीमत आपको दी गई, and we are doing it for 2 tins. तो पहले तो हमें 2 tins का taxable value find करना पड़ेगा. So first thing we do is we find the taxable value for both the tins. What is the taxable value for both the tins? It is 2 times 2,800, which is coming to ₹5,600. We are given the rate of GST, which is 28%. If my rate of GST is 28%, it means I will now find the 28% of the taxable value. तो मुझे डायरेक्टली GST मिल जाएगा, बट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड SGST एंड CGST. तो पहले हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द आंसर. हाफ में डिवाइड करके आंसर करोगे तो आपको रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मिलेगा, विच इज 14%. 14% ऑफ 5,600 कैलकुलेट करके आई गेट 784. 14% मीन्स 14 अपॉन 100. ऑफ के जगह में हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड 5,600, दैट 0 गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट 784. 14 multiplied by 56 is 784, and therefore the value is ₹784. So I hope you have completed writing. We will now go to the next question. Next question is question number 4. The taxable value of a wristwatch belt. Wristwatch का belt, उसका taxable value आपको दिया गया है ₹586. It is given, it is ₹586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of belt to the customer? Customer जब उसकी प्राइस देगा तो विथ जीएसटी देगा, तो वो कितना देगा ये हमें कैलकुलेट करना है. So what I will do is I will start with again the taxable value of the watch. What is the taxable value of wristwatch belt? It is ₹586. In that we will be adding the GST value. तो पहले मुझे GST value मिलना चाहिए. For that we are given the rate of GST which is 18%. अब आपके पास टैक्सेबल वैल्यू भी है और रेट ऑफ जीएसटी भी है, तो पहले आप जीएसटी कैलकुलेट कर लो. व्हाट इज जीएसटी? इट इज 18% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज 18% ऑफ 586. 18% is 18 upon 100. Of is always replaced by into and 586. कैलकुलेशन कैसे करना है? तो सिंपली मल्टीप्लाई 18 with 586 and then divided by 100. When you multiply 18 with 586, you get 10,548, and after you divide 100 in that, you will get ₹105.48. We are getting it is ₹105.48. यानी 586 के रिस्ट वॉच बेल्ट पर कंज्यूमर को जो जीएसटी देना है उसकी वैल्यू है ₹105.48. We will add both these values. So the total price of the belt will be 586 plus the tax. Addition will give us ₹691.48. So I again repeat these things. Meanwhile, I hope you are always starting the writing part. Now what is the question is, we are given the taxable value of the wristwatch belt. उस बेल्ट को खरीदने समय आप जो जीएसटी देने वाले हो उसकी रेट भी आपको दी गई है, इट इज 18%. आपको पूछा गया है कि एज अ कंज्यूमर टोटल अमाउंट वो कस्टमर कितना देगा. फॉर दैट आई विल स्टार्ट विद द टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू इज 586.
यानी उसको 586 तो देना ही है शॉपकीपर को, प्लस उसको उसके साथ में जीएसटी भी देना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर दैट वी आर गिवन द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जो 18% रेट ऑफ जीएसटी है उससे आप उसका जीएसटी पहले कैलकुलेट कर लो। इट इज 18% ऑफ 586। अगर 18% ऑफ 586 निकालना है, इट मीन्स आप 18% को लिखोगे 18/100, ऑफ की जगह में आप लिखोगे इनटू, और अमाउंट है 586। कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई 18 with 586 and then divided by 100, you will get rupees 105.48, which is the total GST value. When this GST value will be added with the taxable amount of the belt, तो वो जो टोटल अमाउंट है वो मुझे मिल जाएगा जो एज अ कंज्यूमर आई विल बी पेइंग टू द शॉपकीपर. So that is my answer for the fourth question. Let us take the fifth and the final question of the exercise, which is the total value of remote controlled toy car is 1770. It is including the GST. Rate of GST is given 18%. Find the taxable value, find CGST, find SGST for the toy. If you compare it with the previous question, हमने टोटल अमाउंट फाइंड किया था फॉर द रिस्ट वॉच बेल्ट, यहां पे टोटल अमाउंट पहले से दिया हुआ है फॉर द टॉय कार. तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे दैट लेट अस कंसीडर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार इज ₹X, बिकॉज वो तो मालूम ही नहीं है हम लोगों को. द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 18% एंड देयरफॉर आई कैन कैलकुलेट जीएसटी. जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हम सेम कर रहे हैं. इट इज 18% ऑफ X. तो 18 upon 100 into X, that will go to ₹18X upon 100. तो मुझे जीएसटी का एक अमाउंट मिल गया जो X के फॉर्म में. ऑब्वियसली टोटल वैल्यू मतलब दिस टैक्सेबल वैल्यू विल बी एडेड विद जीएसटी. तो हम टोटल वैल्यू ऑफ द कार फाइंड कर लेते हैं, विच इज X plus 18X upon 100. 100 and 18 will be added. We get 118X upon 100, which is total price of the car. बट आपके ध्यान में अगर आता है तो दिस टोटल प्राइस इज ऑलरेडी गिवन. इट मीन्स दिस प्राइस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. जस्ट इक्वेट देम. वी विल गेट दिस 118x upon 100 is equal to the 1770, the total price of the car. Calculation is very simple. Take this 100 on the other side, take this 118 on the other side, you will get 1770 multiplied by 100, यानी दो जीरो बढ़ जाएंगे, divided by 118, and that value comes to ₹1500. It means आपने आपने taxable value of the car find कर लिया. It means आपने इसका पहला वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया, which is taxable value of the car. अब हमें फाइंड करना है CGST और SGST कितना है. तो अगेन using that value of X, I can find what is GST. हाफ कर लेंगे तो I will get what is CGST and SGST for the toy car. So let us substitute X. When I substitute X in this GST, that is 18X upon 100, I will get 18 into 1500 upon 100, that 0 gets cancelled. 18 into 15 is ₹270. This is the GST value. लेकिन हमें जीएसटी नहीं चाहिए, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए. तो लेट अस मेक इट हाफ. व्हेन आई डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, आई विल गेट इट इज हाफ ऑफ जीएसटी, व्हिच इज हाफ ऑफ 270, एंड दैट फाइनल आंसर इज कमिंग टू ₹135. 270 का हाफ इज 135. सो इस तरह से आपने अपना एक्सरसाइज खत्म किया है. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. बाय द टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये लिख लो. क्या क्या लिखोगे? तो we are given the taxable value of the car? No. This time we are finding the taxable value of the car. तो हम शुरुआत करेंगे. Let the taxable value of the car is ₹X. Then we will say rate of GST is 18%. Then we will say GST अगर मुझे फाइंड करना है तो it will be 18% of the taxable value which we have assumed as X. अब उस X में हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get 18X upon 100 is the tax. Now this tax is when added with the taxable value which is taken as X. Add करके we will get the total value of the car which is coming to 118X upon 100. But हमें पता है कि this total value of the car
विच वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 1770 रुपीज 1770. इट मीन्स ये दोनों को सेम होना चाहिए एंड देयरफॉर वी इक्वेट देम. When you equate them, it forms an equation. Solving that equation gives us the value of x. Getting the value of x, it means I am getting the value of taxable value of the car, which is rupees 1500. Now GST है, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. GST is 18x upon 100. x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो we get that GST is rupees 270. बट हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज SGST एंड व्हाट इज CGST. फॉर फाइंडिंग SGST एंड CGST हम उसे हाफ कर लेंगे. व्हेन वी मेक इट हाफ, 270 का हाफ इज रुपीज 135 एंड देयरफॉर वी गेट द फाइनल वैल्यूज फॉर द क्वेश्चन विच आर रुपीज 135. So this way we have seen that in the entire exercise we are dealing with the questions of GST. GST is always divided into two parts, SGST and CGST, जिसके बेसिस पे आपने पहला क्वेश्चन किया था, जिसके बेसिस पे आपने दूसरा क्वेश्चन भी किया था. तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि GST अगर ऐड होता है तो वी गेट द टोटल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एंड उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आखिरी दो क्वेश्चन भी किए थे. लास्ट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट हमने देखा कि वी आर ऑलरेडी गिवन द टोटल प्राइस, यूजिंग दैट हमें टैक्सेबल वैल्यू को फाइंड करना है. So these are the questions which are based on GST जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है. With that we have completed the first practice set. In the further part of the lesson जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि हम देखेंगे कि GST को और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए. Okay, so let us stop here for the day. In the next session we will continue with the further part of the lessons. Thank you very much. Have a nice time.